स्वामी श्री महाराज सुभाष स्वामी जी, हमारा स्वरूपीय श्रीमान मोहनदास भाई, श्रीमान जेठा भाई तथा उपस्थित भाइयों, पूज्य माता तथा प्यारी बहनों, हूँ तो परम पूज्यपाद स्वामी जी हमारा श्रीमद दर्शन करवा માટે આવ્યો હતો, પરંતુ સ્વામીજી આજ્ઞા છતાં એમની આજ્ઞા મને પાલન કરવી જોઈએ. હું જે કંઈ તમારી આગળ બોલવી શકશે બોલવાનો પ્રયાસ કરીશ એ બધું પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજે સ્ત્રીના પ્રવચનમાં આપ બધા સાંભળશો. હું એટલું જ કહીશ કે આ દુનિયાની અંદર સંત મહાપુરુષોનું સમાગમ, એમનું સત્સંગ દુનિયામાં અતિ દુર્લભ છે અને એમના દર્શન, એમના સત્સંગ દ્વારા પરમ શાંતિ અને પરમ સુખ, પરમ આનંદ, જેના માટે આવી અખિલ સંસાર પોતે ઝંખી રહી છે, ઝંખના કરી રહી છે, એ શાંતિ, એ સુખ, એ આનંદ, એવી અસીમ શાંતિ, અસીમ આનંદ, પરમ આનંદ ની જો ઉપલબ્ધિ કરવી હોય તો પૂજ્ય સંત મહાત્માઓના શરણાગતિમાં એમની સેવા, એમના દ્વારા મળી શકે છે. સંત કબીરનો બહુ સુંદર એક દોહરો છે. તે કહે છે કે દોહરામાં એક સાચીમાં કે અલગ પુરુષ की आलस, अलग पुरुष की आलसी साधु की देन, लखा जो चाहे अलग को तो साधु जी में देख. जो तुम्हारी परमात्मा में जो हो, परमात्मा में दर्शन करनी हो, ईश्वर की झांकी करनी हो, तो तुम्हारे શું કરવું જોઈએ? સદગુરુ કહે છે જબ તમારા ચહેરાને, તમારા પ્રતિબિંબને, તમારા મુખારવિંદને જોવું હોય તો અરીસા સામે જઈને ઉભા રહો, એટલે તમે તમારા શરીરને, તમારા ચહેરાને, તમારા મુખારવિંદને અરીસા સામે ઉભા રહો એટલે જોઈ શકો છો. એમ વાલા પિતા પરમાત્મા ને જો તમારે જોવું હોય તો એ પરમાત્માને જોવા માટે ના જો આલિશા, આયના, દર્પણ કોઈ હોય તો કોણ છે? સંતો છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામી જેવા મહાપુરુષો છે. જો એ અલગ જેને આપણે ન લખી શકીએ, અલગ છે એ આપણે આપણા લક્ષ્મણ આવી શકે, એ તમારે જોવું હોય તો એ પરમાત્માને જોવા માટે ના જો આલિશા, આયના, દર્પણ કોઈ હોય તો કોણ છે? સંતોષ. પરમ પૂજ્ય સ્વામી જેવા મહાપુરુષો છે. જો એ અલગ જેને આપણે ન લખી શકીએ, અલગ છે એ આપણે આપણા લક્ષ્મણ આવી શકે, એવા પરમાત્માને જો જોવું હોય, એના દર્શન કરવું હોય, ઝાંકી કરવી હોય તો સંતોના શરીરમાં એમના માં જ એનું દર્શન થાય. એમનું દર્શન થશે નથી. આ સદગુરુ સંતોનો સિદ્ધાંત માટે આપણને સુંદર સુંદર શું અવસર પિતા પરમાત્માની કૃપાથી મળ્યો છે. સ્વામીજી અહીં પધાર્યા છે માટે એમના સ્વર્ણમારી, એમના સત્સંગ દ્વારા, એમના જ્ઞાન દ્વારા આપને આપના હૃદયમાં વિરાજતા કમૈયારામ એનું દર્શન કરે અને સ્વામીજી પરમ શુભના આપને બધા બનીએ. હું તો સ્વામીજીના દર્શનથી ખૂબ પાવન થયો છું અને આ બધા પણ ખાઓ, એમની કૃપા આ બધા પવિત્રો અને મોહનભાઈ તો પરમ ભાગ્યશાળી છે. મહાભક્ત આત્મા છે. એમના ઉપર સદગુરુ દયા ઉતરી છે. કારણ કે એમના
खूब खूब थोड़ा वक्त प्रयत्न थी खूब सत्संगમાં આવ્યા છો ધર્મનગરમાં એટલે સંત વિવાદ છે એમના માટે શું કહું પણ છતાં મહાભાગ્યશાળી આત્મા છે જેમના ગૃહ મંદિરમાં આવા મહાપુરુષ બિરાજે પધારે આવે સત્સંગ કરે અને એમના મારફત આપણને થોડો ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ओम अथर्वणेयां प्रपदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचङ्गिरे ब्रह्म विद्यां भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ओम सौनको हा वै महासालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन् भगवो विज्ञाते तर्मिदं विज्ञातं भवतीति वे सज्जनों, बड़े भाग्य की बात है कि आप सब के बीच में हमारे स्वामी जी कबीर आश्रम के उपस्थित हैं। सुंदर इनके प्रवचन सुने थोड़े, यूं तो सीधा समझो परमात्मा ने जीव को दो कान दे के रखे। इन दो कानों से कुछ सुनेगा ही, तो अगर अच्छा नहीं सुनेगा तो बुरा सुनेगा। अगर इन कानों से अच्छा सुनेगा नहीं तो ये बुरा सुनेगा। और ये सीधी बात समझो, जैसे आजकल के विज्ञान में आप जो मुंह से बोलोगे वो टाइप हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो अच्छी वाणी अगर आप बोलोगे तो अच्छी वाणी रिकॉर्ड हो जाएगी, और इस अच्छी वाणी को जब भी आप सुनोगे आपके चित्त को प्रसन्न करेगी, चित्त को विचारवान बनाए। अच्छी वाणी का श्रवण होना ये बड़ा भाग्य है। यजुर्वेद का मंत्र है, इसी प्रार्थना करता है, भद्रं कर्णे भी सुनियाम देवा भद्रं पश्येम अक्षरजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाक्को सत्संविर्व्यसेमा देवहितं यदायु। इस मंत्र के अंदर ऋषि क्या प्रार्थना करता है? कहते हे भगवान, इस आपकी दुनिया में नाना प्रकार के शब्द सुनने को तो मिलेंगे। हम अगर किसी मनुष्य की वाणी नहीं सुनेंगे तो पशु की, पक्षी की वाणी सुनने को मिलेगी। इसलिए मनुष्य को मनुष्य की वाणी पहले सुननी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की वाणी सुनेगा तो मनुष्य जैसा विचार करेगा। और यदि पशु की वाणी सुनता है, जैसे गौ बोलती है बा, मनुष्य की वाणी मान लो सुनने को मिली नहीं जन्म से, पशु की ही वाणी सुनने को मिली है। ये मनुष्य का बच्चा, वाणी मनुष्य की सुनने को मिली नहीं। आप बतलाओ इसके अंदर कौन सा विचार प्रकट होगा? कुछ वर्षों की पहली घटना है। एक भेड़िया, उत्तर प्रदेश की बात है, किसी मनुष्य बच्चे को पकड़ के
छोटे बच्चे। किंतु उस भेड़िए ने बच्चे को मारा नहीं। वाला अब ये मनुष्य का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो पैरों के बल से भी तो हम लोग माता पिता या दूसरे लोग बच्चे को चलने सिखलाते हैं, तब पैरों से चलता है। अनेक जैसे पशु चलता है, जैसे शुरू में बच्चा चलता है हाथ से ऐसे ही चलेगा, क्योंकि खड़ा होना जब कोई सिखलाएगा नहीं तो खड़ा होगा। ये तो शुरू में ही बच्चों को सिखलाते हैं खड़ा होना, तो खड़ा होता है, और नहीं सिखलाओगे तो ऐसे ही चलेगा। अब वो जो बच्चा है वो 8-10 वर्ष के बाद में पकड़ा। जंगल में शिकारी लोग तो जाते हैं, देखा तो ये दौड़े चला जा रहा है, जंगली हो गया ना, दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल से जैसे बंदर दौड़ता है ऐसे दौड़े जा रहा है। इस प्रकार जो दौड़े जा रहा है, शिकारियों ने पीछा किया, इसको पकड़ लिया और पकड़ के लाके लखनऊ के जू में जाके रखा। और धीरे 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 इसको प्यार देने लगे। तो ये बतलाओ, मनुष्य जब बना है वो, तो उसमें कुछ मनुष्य का संस्कार भी तो है ही है। और फिर प्यार को तो सांप भी समझता है, तो मनुष्य का बच्चा है वो क्यों नहीं समझेगा। अब वो जो है धीरे 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 प्यार में आ, और उसको धीरे धीरे मनुष्य की भाषा सिखलाने लगा, और आगे जाकर के वो मनुष्य की भाषा सीखने लग गया। किंतु सोचो कर्म का गेड़ा कैसा है, भाग्य कैसा। जन्मते ही छोटे बच्चे को जंगली जानवर उठा के ले, अब जंगली जानवर क्या देगा, मारा नहीं, इतनी बड़ी दया समझो, यह इतना बड़ा उसका भाग्य था। तो पशुओं के अंदर रह के पशुओं जैसी बहुत बोली सीखे, भाषा सीखे, किंतु मनुष्य जैसी वाणी नहीं सीख सका। मनुष्यों के अंदर जब रहेगा तो मनुष्य वाणी सुनेगा, और उसमें भी यूं तो ठीक है, मोद प्रमोद सुख दुख के शब्द तो अपने सुनते रहते हैं, किंतु वो वाणी बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है जिस वाणी से तुम्हारे को मालूम पड़ेगी आत्मा क्या है। जैसा तुम्हारा ये छोटा सा शरीर बिना इस आत्मा के जी नहीं सकता, ये सारे का सारा ब्रह्मांड कैसे जी जाएगा, पहले होगा। अपने शरीर में सीधा समझो, ये सारा शरीर और एक ही आंगुली, अगर इस आंगुली को यहां से ऑपरेशन कर दो और शब्द विज्ञान, तो ऑपरेशन करने पर हमारे शरीर से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो ये आंगुली जिएगी, मर जाएगी। इतना आत्मा के करंट के बिना ये जीने वाली नहीं। तो इस सारे शरीर की जो आत्मा है वही आत्मा इस उंगली की है, ये याद है। ऐसा नहीं इस उंगली के जीने के लिए कोई दूसरी आत्मा चाहिए। इसी प्रकार समझो सारा ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में एक कण जैसा तुम्हारा शरीर है। इस ब्रह्मांड की दृष्टि से देखोगे तो शरीर कितना बड़ा है तुम्हारा, एक कण जितना है। तो सारे ब्रह्मांड की जो आत्मा है, तुम्हारे शरीर की आत्मा कौन होगी, तुम्हारे शरीर का जीवन कौन होगा।
तो इसका अर्थ है कि सारे ब्रह्मांड की जो आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है। इसलिए अपनी आत्मा को देह परिमाण मत मानो। ये जो उपनिषद विद्या है, ब्रह्म विद्या, ये तुम्हारे को किसी लोक में नहीं भेजे, या तुम्हारे को ब्रह्म नहीं बनाती। तुम्हारा जो असली स्वरूप है उसका परिचय मानो। तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, उस अपने ब्रह्म स्वरूप को समझो, उस अपने असली स्वरूप को समझो। शरीर आदि की दृष्टि से जो भी तुम्हारा स्वरूप है ये तो तुम्हारे कर्मों का जाल है। पूर्व जन्म के जैसे कर्म तुम्हारे बन गए, उसके अनुसार तुम इसमें बंद हो। यहां नहीं देखते हो, हमारी गवर्नमेंट के साम्राज्य में अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो गवर्नमेंट उसको अच्छा पुरस्कार भी देती है। और यदि कर्म थोड़ा मंद करता है तो उसको जेल में भी तो बंद करती है, तो वो जेल में रहता है। तो जेल के अंदर भी तो विभाग है ना, उसमें भी ABCD है। कोई C क्लास का कैदी है, कोई A क्लास का है। आया समझ लो, मनुष्य योनि में क्या आना है, A क्लास की कैदी समझो अपने को, और पशु पक्षी योनि में जाना क्या है, C क्लास, आगे की क्लास। तो ये क्लास का जो कैदी है उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान रखती है, उसको खाना भी अच्छा मिलता है, रहन सहन भी उसका अच्छा है, और सारी फैसिलिटी दूसरी और अच्छी है, किंतु रहना पड़ेगा उसको पुलिस की नजर, और इतना ही बनता है, पुलिस की नजर के बाहर वो नहीं जाता। और अमुक अवधि तक उस A क्लास में रहेगा, बाद में दूसरी जगह भी उसको भेजेंगे। अगर मान लो कि जामनगर के कैदी को राजकोट भेजा तो कोई अकेला गाड़ी में उठा के थोड़ी भेजे, साथ में पुलिस जाएगी। या अहमदाबाद भेजा या बॉम्बे भेजा मान लो, तो ये अकेला नहीं जाएगा कैसे, साथ में उसके पुलिस जाएगी। इसी प्रकार समझो, ये जो तुम्हारी अंतरात्मा है, हम जब तक ये अपने असली स्वरूप को समझेगा नहीं। अपने स्वामी जी बैठे हैं, पहले आपको कहा ना कि वो जो अलग रूप है वो दोहा तो मेरे को याद नहीं। कबीर संत की वाणी है, बड़ी अच्छी वाणी है उनकी, है कहते कबीर की उल्टी वाणी, बरसे पानी भीगे कंबल। ऐसे वो संत हो गए अपने समय के ज्ञानी पुरुष। तब वो कहते हैं वो जो अलग है, अलग है वह जिसको तुम किसी इंद्रिय से देख नहीं सकते। ये तो वाचो निवर्तन, श्रुति कहती है तो वाचो निवर्तन से आप प्राप्त मनसा था, जहां वाणी जाती है वहां तो बेटा मन को भी कैसे ले जाएगा। ऐसा वो जो पुरुष है, वो आत्मा, वो अलग है, वो इन इंद्रियों से अलग नहीं, वो इन इंद्रियों की वृत्ति का विषय। इंद्रियों की वृत्ति का विषय तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श। आप तुम्हारी रूप को देखेगी, कान शब्द को पकड़ेगा, जीव रस को पकड़ेगी, नाक गंध को पकड़ेगी,
लोग इंद्रिय स्पर्श को पकड़ेगी। अब इनमें से भगवान के भक्त को सोचो, भगवान कौन है? क्या वो रूप है कि रस है कि गंध है कि शब्द है कि स्पर्श है? और रूप है तो काला भगवान है कि गोला गोरा भगवान है? कौन सा है? रस है तो वो खट्टा भगवान है कि मीठा भगवान है? उसका स्वाद क्या है? आया। इसलिए इंद्रियों की वृत्ति का वो विषय नहीं। इंद्रियों की वृत्ति का विषय परिमित विषय, विनाशी विषय। ये तो केवल तुम्हारे अंदर मोह को उत्पन्न करके जाए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इन इंद्रियों से पीछे हटके सोचे, और उस मन से भी पीछे हटो जो मन इंद्रियों का दोस्त है। आया। बिना मन से कहोगे हम आत्मा का परमात्मा रूप से दर्शन करेंगे, ये बात भी बनेगी नहीं। किंतु वो विशुद्ध मन है। इंद्रियों का साथी जो मन है वो अविशुद्ध है। इसलिए श्रुति उस मन का तो निषेध करती है, अप्राप्त मन करता। किंतु वो जो शुद्ध मन है, वो जो ब्रह्म मन है, ब्रह्म की ओर चलने वाला शुद्ध मन, उस मन को जब आप पकड़ोगे तो ये मन तुम्हारे को ले आएगा। इसलिए वेद में श्रुति कहती मनसा पश्यति मनसा शृणोति मनसा विजानाति मनसा स्वाद विजानाति, मन से ही सब जानता है। इसलिए बुद्धिमान मन को बचावे। देखो आप लोग माताओं या परिवार में रहते सभी, छोटा बच्चा होता है, माँ उसको प्यार से कैसे गोद में चिपका के रखती है, छिपा के रखती है। जल्दी से किसी को देखने में नहीं लेती, कपड़े से ढक के रखती है मुंह। बच्चा देखने में सुंदर होवे ना तो जल्दी किसी को उसका मोड़ा नहीं देखने देती, और देहे भी तो काला टिक्का लगा के रखेगी यूं कर कि किसी की नजर पड़े तो कहां पड़े, वहां पर पड़े। तो ये सोचो तुम्हारे से सुंदर कौन है इस दुनिया में, और माया भगवती से बड़ी मम्मी कौन है इस दुनिया है? 2 बच्चे 4 बच्चे आजकल तो कहते हम 2 हमारे 2। पुराने जमाने की जो माताएं थी कहते भगवान का प्रसाद है जो मोले थे। तब वो जो मम्मी है बड़ी, कौन भला? माया भगवती, उसके तो सभी। किंतु सबसे अच्छा जो बच्चा है वो ये मनुष्य प्राणी है। इसलिए इसको बड़े यत्न से ढकते रखती, किसी को देखना नहीं चाहिए। तो जो महान भाग्यशाली होता है, महान विवेकी होता है, पूर्व जन्म का पुण्यशाली जो होगा, वो इस आत्मा के स्वरूप को इस जन्म में जानने की इच्छा करेगा। वो तो जहां भी जाएगा पाएगा, उसमें क्या फर्क है? जिस भी योनि में जाएगा उस योनि में अपना भोग तो भोगेगा। बड़ा एक धर्मात्मा सेठ है और सदाचार पुण्यात्मा, उस पुण्य आत्मा सेठ को क्या भान होता है कि ये शरीर छूटने के बाद में मेरे को सूर्य योनि में जाना है, सूर्य योनि में मेरा जन्म होना है। सूर्य होता है ना ये गली में, ये सूकर क्या कहते हैं, सूर्य योनि में जाना है। अब ये बेचारा बड़ा चिंता में है कि हमारा पुण्य तो बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, किंतु ये शरीर छूटने के बाद में बड़ा मंद कर्म, बड़ा तामसी कर्म आया है जो तामसी योनि में जा रहा है। अब चिंता में रहने लगा तो अक्सर समझ जाते हैं लोग कि हमारे पिताजी चिंता में रहते हैं। बड़े लड़के ने पूछा कि पिताजी इतनी चिंता किस बात की?
आप आजकल बड़ी चिंता में रहते हो, क्या दुख है? ऐसा जब कहा तब वो जो पिता कहने लगा, बेटा देख, कोई पूर्व जन्म का ऐसा हमारा पाप है कि ये शरीर छूटने के बाद तामस योनि है, कहते ये स्वर योनि में मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो उससे अगर तू मेरा उद्धार कर दे तो बात फिर हमारा वो भोग कट जाए। तब पुत्र कहने लगा, पिताजी हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप हैं? तब उसने बेचारे ने अपना वो भी बतलाया कि ये बगल में ही है वो स्वर, और 7 बच्चे उसके जन्मे हैं, और एक बच्चा होगा जिसके बीच में बाल सफेद होंगे, मत्थे में टिक्के वाला। आपने टिक्का लगा ऐसे टिक्के वाला हो, तो उसको देखते जन्मते ही अगर तू मार देगा तब हमारा मोक्ष हो जाएगा उसकी। और ने कहा, पिताजी मैं करूंगा ऐसा, मैं ऐसा जरूर करूं। अब इधर क्या हुआ, कुछ काल के बाद में शरीर छूट गया। ये तो शरीर है, और शरीर छूटा, अंत्येष्टि क्रिया जैसी होनी चाहिए थी वो भी किया। बाद में लड़का अपना धंधे में मगन हो गया, भूल गया ये तो माया की नगरी है, भूल गया। 5-7 महीने के बाद में उधर से चक्कर लगाते जब आगे आया तो देखता क्या है, वो सूरी के बच्चे 6-7 फुर फुर करके चल रहे हैं, और उनकी मां भी। अब ये जो उसने देखा तो उसके अंदर तो वो हिंसा प्रकट हो गई। मैंने कहा, आदमी के अंदर हिंसा जब आ जाती है तो भयंकर हो जाता है। अब हिंसा जो आई तो खट देखने लगा कहां है, और उस समय वो बच्चा हो गया था 1 महीने का। और उस बच्चे ने जो है वो ऐसी भाषा में बोला, कहा कि बेटा अब मेरे को मत मार, अब मेरे को ये योनि बड़ी प्यारी लगती है, ये नाली का कीचड़ जो है ना गंगा, ये तो मेरे को सीरे की तरह मीठा लगता है। कैसा मीठा लगता है बोला, जैसा सीरा हो ना ग्राम प्रकार गली का कीचड़, इतना स्वादिष्ट लगता। तो एक बात तो ये समझो, ये जो सर्वभूतांतरात्मा है सभी आनंद रूप में, सभी जगह को आनंद रूप होके विराजमान। ऐसा नहीं है कि मनुष्य योनि में ही सुख रूप है या स्वर्ग में ही सुख रूप। पशु पक्षी कीट पतंग भृंग जितनी योनियां हैं सब जगह उसका बहुत आनंद जो है वो आनंद रूप हो गए परमात्मा व्याप्त। जहां भी जीव जाएगा उसको आनंद तो मिलेगा, किंतु फिर भी आनंद मिलने पर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? वो पापी योनि है, वो पापी योनि है। क्यों पापी योनि है? पापी योनि का लक्षण क्या कहोगे? पापी योनि का लक्षण है जहां पर आप जाके कुछ विचार नहीं कर सकते हो, कुछ विचार आप नहीं कर सकते हो, कुछ सोच नहीं सकते हो, उसको पापी योनि कहते हैं। जहां पर विचार करने में आप स्वतंत्र हैं, सोचने में आप स्वतंत्र हैं, बोलने में आप स्वतंत्र हैं, वो योनि पुण्य योनि। इसलिए मनुष्य योनि बड़ी है। इसलिए मनुष्य योनि में देवता भी दसते हैं, क्योंकि यहां विचार करने का मौका है, सोचने का मौका है, बोलने का मौका है। किंतु क्या बोलना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी हमारा कंट्रोल करती है। नहीं तो ये मनुष्य पता नहीं क्या सोचने लग जाए। न्याय से सोचो, नीति से सोचो,
धर्म से सोचो तो तुम्हारा भी भला होगा, दूसरों का भी भला। और सबसे ऊपर सोचो तो ये ब्रह्म क्या है, ये तुम्हारी आत्मा क्या है, ये सोचो। इस चेतन के ऊपर कोई तत्व नहीं है, ये सारे शरीर है। देखो आत्मा के बिना ये शरीर क्या बनेगा? ना ये किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, और इस मुर्दे से कोई प्यार भी नहीं करेगा। जब वो चेतन है तभी सब कुछ है। इसलिए शरीर में जो कुछ भी है तो वो ये चेतन आत्मा ही है और कोई नहीं। उस आत्मा को जाने बिना ये जीव है, याद रखो। और इसलिए ये कर्म के बंधन में है, कर्म की जेल में। पहले इस बात को हमने कहा ना कि कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में अगर ले गए तो भी साथ में पुलिस तो जाएगी, भले वो 1 लाख का भी कैदी क्यों ना हो। इसी तरह ये प्रकृति के साम्राज्य में मनुष्य शरीर क्या है? 1 लाख की जेल है तुम्हारी। इस शरीर को जिस समय जीव छोड़ता है दूसरे शरीर में जाएगा तो पॉलिशमैन साथ में जाएंगे। कहोगे महाराज वो पॉलिशमैन कौन से हैं जो यहां से दूसरे शरीर में साथ में जाएंगे? तो तुम्हारे पॉलिशमैन है ये इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय गिन लो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, और आगे क्या है? मन बुद्धि। तो कितने हुए होगा? ये 17 पॉइंट में तुम्हारे, ये तुमको छोड़ेंगे, ये पकड़े पकड़े ले जाए। इस शरीर में भी पकड़े पकड़े रखेंगे, दूसरे शरीर में भी पकड़े पकड़े रहेंगे। इनसे छूट नहीं पाना है। जेल की सजा कट गई, इसका भी क्या है? पुलिस के हाथ से बाहर हो गया। जेल में भी तो घर में ही रखता है, वो भी तो ईंट पत्थर का ही मकान बना हुआ है। अब घर का मकान भी ईंट पत्थर का ही बना है, कोई सोने का तो नहीं बना है। घर में तो रहोगे, किसको घर में रहने पर इसकी निगरानी नहीं, और जेल में रहने पर पुलिस की निगरानी, इसलिए उसको जेल कहा और इसको घर कहा। इसी तरह जो ज्ञानवान है, आत्म लेता है, वो ये जो पुलिसमैन है तुम्हारे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। तो ये जुदे जुदे सब इंद्रिय जो है पुलिसमैन है, और मिल करके ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो एक नेट है, जाला है, और इसके बैकग्राउंड में एक कारण शरीर, वो कारण शरीर है अविद्या। जहां भी जीव जाएगा उससे पूछो, देखो अपने तो समझो कहोगे कम पढ़े लिखे हैं, किंतु एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है जिसको अपने महाबुद्धिमान मानते हैं, आया बाघ अधिपति कहते हैं उसको, बाघ अधिपति है। वकील को अधिवक्ता कहते हैं, अब वो बाघ अधिपति, सुप्रीम कोर्ट का जो जज, उसके सामने कोई क्वेश्चन करो तो वो भी कहेगा मैं नहीं जानता। अरे तू नहीं जानता, जानने की तो तू रोटी खाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बन के तू बैठा है, तू यहां जो रोटी खाता है किस बात की खाता है? जानने के लिए एवरीथिंग इज नॉन बाय मी, जो कुछ भी है उसको हम जानते हैं, जानने की रोटी वो खाता है। ऐसा कैसा हुआ भी? साथ में कैसा? मैं नहीं जानता। आया ये नहीं जानना जो है, ये इग्नोरेंस इसको कहते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं।
इस अज्ञान की जो निवृत्ति है ये बड़े महान तप से होती है। महान पूर्व जन्म का कोई बड़ा सीधा सुकृत हो गए। सत्संग भी जो है एक तप है। 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए सत्संग में आदमी बैठता है, सब तरह से अपने मन को मोड़ के आता है। ये थोड़ी है कि 1 घंटा तुम्हारे को घर प्यारा नहीं लगता है। कई बार मन जो है उछल के घर भी चला जाता है। जो इन्हें भी आवे छे हमारी बहू शू करे छे, हमारा दीकरा शू करे छे, शू થઈ ગયા वहां शू, ये सब होता है। वो भी मन को रोक के बैठे रहते हो, ये सब आया। और घर में बैठने उठने की जितनी सुविधा उतनी सुविधा भी कहाँ होती है सब। तो इस तप के द्वारा तुम्हारे अंदर इस ज्ञान को प्रकट करना, ये प्रकाश तुम्हारे अंदर आ, जिस प्रकाश से आंख देखती है, जिस प्रकाश से कान सुनता है, जिस प्रकाश से तुम्हारी जीभ स्वाद लेती, जिस प्रकाश से तुम्हारी नाक गंध सुगंध दुर्गंध लेती है, और ये हाथ वस्तु को स्पर्श का ज्ञान हो, वो जो प्रकाश है वो अंतर आत्मनेव तमहा आत्मनेवम बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु वैशरणम प्रपद्ये। महान एक ऋषि है, वो ऋषि प्रार्थना करता है कि हे भगवान तमहा आत्मदेवम, वो जो आत्मदेव है कैसा आत्मदेव? कहते बुद्धि प्रकाशम। बहुत से लोग कहते महाराज परमात्मा से मिलने के लिए कहाँ जाए? अब बतलाओ, ये वेद का मंत्र सीधा है। परमात्मा से मिलने के लिए किसी जगह में जाना पड़ेगा, कहीं भूमि के ऊपर जाना पड़ेगा? मंत्र सीधा साफ होता है, तमहा आत्मदेवम बुद्धि प्रकाशम है। वो जो आत्मदेव, कौन सा आत्मदेव? कहते बुद्धि प्रकाशम, जो अपना बुद्धि को प्रकाश दे रहा है। इसकी लाइफ में बुद्धि सोचती है, बुद्धि विचार करती है। सोचो तो सही, वो आत्मदेव। जिसके प्रकाश से आंख देखती है, तो आंख है जैसा ये चश्मा रखा है, इसको टेबल पर यूं खोल के रख दो। आप बोलो चश्मा भाई तुम पढ़ के बताओ आंखों से, तो ये चश्मा पढ़ लेगा। ऐसा ही समझो ये 2 नेत्र तुम्हारे क्या है? चश्मा आया, ये चश्मा है। उस चेतना आत्मा के बिना ये आंख कुछ नहीं देखेगी, कान कुछ नहीं सुनेगा, हाथ हिलेगा। लग जाए हाथ, ये सोचो फिर मरेगा कौन? और फिर कोई मर भी गए तो अपना क्या बिगड़ता है? काम तो अपने ख्याल से, आंख भी देखती है, हाथ भी कुछ काम करते ही हैं। अपने बुढ़ा होगा तो भी चेतना आत्मा के बिना 1 सेकंड के लिए भी ये ना तो और न ये आंख देखेगी, कुछ नहीं। ये ऐसा वो जो अंतरात्मदेव है, उस अंतरात्मा को जानने के लिए भाई ये उपनिषद विद्या है। इस उपनिषद विद्या के लिए अपनी हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति, ऋषियों की जो बड़ी संस्कृति है, जो वैदिक परंपरा है, इस वैदिक परंपरा में उपनिषद विद्या के ऊपर कोई विद्या
इतने बड़े बड़े संत हुए हैं अपने समय में। गुरु नानक देव हुए पंजाब में, इधर कबीर साहब हुए हैं, तुलसीदास हुए, और कितने भी मध्य युग में दूसरे अच्छे ज्ञानी संत हुए। इन्हें उपनिषद विद्याओं को, ये जो उपनिषदों की बड़ी सुंदर विद्या है, इस विद्या को लोक भाषा में लोक भाषा में इस विद्या को ले आए, जिससे सामान्य जनता जीवन का रहस्य समझे, जीवन को समझे। क्योंकि समझना तो पड़ेगा भाई, बिना समझे कुछ होने वाला आया। बिना समझे तो यूं सोचो कि हम हाथ में अगर किसी ने पानी का गिलास दिया और पानी हमको पीना है और उसी समय बेहोश हो गए, अब ये बताओ पानी किसके मुंह से पियोगे? तो कमी किस चीज की है भला? मुंह है, हाथ है, पानी भी गिलास में, क्यों नहीं पीते हो? पीने की होश ही नहीं रही। अब डॉक्टर भी तुम्हारे को इतने बड़े मुंह से पानी नहीं पिला। देखते नहीं है डॉक्टर ग्लूकोज का इंजेक्शन देता है, कहीं दीवार फाड़ के, कहीं नस से इंजेक्शन से देता है। इसका क्या है? दरवाजे तुम्हारे पर, दरवाजे से कोई नहीं आ सकता, किंतु दीवार तोड़ के जैसा चोर के घर में घुस जाए। डॉक्टर भी जो है दीवार तोड़ करके अंदर मसाला भर देता है, किंतु इतना बड़ा जो मुंह है वो मुंह पर, ये मुंह तो तुम्हारा, तुम खोलोगे तो खुले। इसलिए भाग्यशाली हो आप, है सत्संगी हो। जामनगर के पुराने सब श्रोता हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े समय में ये मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद बड़ा सुंदर उपनिषद है। और इस मुंडकोपनिषद की जो ब्रह्म विद्या है, इसके स्वयं प्रजापति ब्रह्मा बक्ता है। कहते ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा सर्वाय ये पुत्राय प्राहा स ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव। मंत्र कहता है कि देवताओं में ब्रह्मा ही सबसे पहले कहते प्रथम हुआ। प्रथम हुआ माने महान हुआ ब्रह्मा, ब्रह्मा से बड़ा कोई देवता नहीं। कल इसके प्रसंग में एक बात आई थी कि बड़ा इस लोक में किसको कहना चाहिए, तो शरीर से बड़ा मत समझो। आया बड़ा इस लोक में उसको कहते जिसके अंदर चार प्रकार का ऐश्वर्य हो, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, ये चार चीजें जिसके अंदर होंगी